Hello students, I am your EVS teacher Smita Zambre, and today we are going to start our 7th lesson from EVS part 1. Let us solve our own problems. In this lesson we are going to learn or discuss 3 points: issues in civic life, solving disputes and the problem solving. So now let's move towards the lesson. What is the first point of this lesson? Issues in civic life. Now what is the meaning of issues? Issues means problem. So students, in our day-to-day life or in our civic life, we face so many problems. And if these problems, we ignore them, they become very worse. Or sometimes we say that we will solve this problem after some time. But that time the problems become so worse. So what these problems cause? These problems cause an inconvenience in our day-to-day life. Sometimes our life is thrown into disorder also. And if we turn a blind eye towards the problem, they become more and more worse. So it is best to solve them in time. So better way क्या है कि टाइम रहते ही हमें उसे सॉल्व कर देना है. So, the problems faced by people in cities and villages is called the problems or issues in civic life. जब कभी लोगों को कुछ problems आते हैं उनकी day to day life में, उसे कहा जाता है issues in civic life. It is important to able and identify the issue. सबसे पहले हमें ये पता करना है कि problem है क्या actually में, and क्या होता है कि that problem is नॉट सॉल्व बाय ओनली वन पर्सन, और प्रॉब्लम समझ में आने के बाद कोई एक इंसान उसे नहीं सॉल्व कर सकता. प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व थ्रू एवरीवन्स एफर्ट्स एंड कोऑपरेशन. उसके लिए हमें सभी के एफर्ट्स लगते हैं और कोऑपरेशन लगता है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपकी कॉलोनी में अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई है, देन यू हैव टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम विथ एवरीवन्स कोऑपरेशन एंड द एफर्ट्स. Now let's move towards the second point of this lesson, solving disputes. Now what is the meaning of disputes? Disputes mean disagreement, or we can say the argument. है ना? Whenever people live together, some disputes causes there. Or we see the various issues arising in our towns and villages. And if that disputes are continuous, the well-being of that village is affected. अगर कंटिन्यूसली वहाँ पर अगर हमारे बीच अगर डिस्प्यूट्स रहे तो वहाँ क्या हो सकता है, डेवलपमेंट रुक सकती है. इट आल्सो लीड्स द यूनिटी एंड द प्रोग्रेस ऑफ विलेज. मतलब यहाँ पर क्या होता है, लोगों की यूनिटी पर भी अफेक्ट गिरता है. अगर हमारे प्रॉब्लम्स या फिर हमारे डिसएग्रीमेंट्स अगर ईजी है, सो इट इज़ बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, तो लोकली जो बॉडीज़ होते हैं, है ना, जैसे कि गांव में अगर सरपंच है तो उनके पास जाकर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं. बट अगर डिस्प्यूट अगर लोगों के बीच में अगर नहीं हो रहा है अच्छे से सॉल्व, देन इट इज़ टेकन टू द अप्रोप्रिएट बॉडीज और टू द कोर्ट्स. एक तो उसे कोर्ट में लेकर जा सकता है. या फिर हम देखते हैं कि 2007 से, है ना, सिंस 2007 महात्मा गांधी डिस्प्यूट फ्री विलेज मिशन इज गोइंग ऑन and it is implemented in every state. तो इससे क्या होता है, इसका जो मेन एम है, the scheme of is that it should be able to solve the problems of the villagers in a peaceful discussion. मतलब शांति से सारे problems लोगों के solve किए जा सकते हैं. These methods of solving disputes increases the harmony of the village, and villages which solve their problems using this method, they get the peace award. So these in many cities we can see that our mohalla committees help to solve these disputes also. Now let's move towards the third point of this lesson, problem solving. अभी हमने देखा कि problems मतलब क्या, problems को कैसे solve करना है, या फिर अभी मैंने कहा था कि how we can solve the problem. Okay, in the village called Hiwre Bazar in the Ahmednagar district, है ना, अहमदनगर का जो गांव है हिवरे बाजार, वहाँ पर वाटर का शॉर्टेज एक बहुत बड़ी समस्या थी लोगों के लिए. एंड दिस इज सॉल्व बाय द हेल्प ऑफ विलेजर्स. और
वहाँ के लोगों ने ही मिलकर उसे सॉल्व कर दिया। या फिर हम देख सकते हैं कि उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट में कुंडलवाड़ी नाम का जो गांव है, वहाँ पर श्रमदान के थ्रू जो है लोगों ने वहाँ पे क्लीनलीनेस का जो है वो प्रोजेक्ट हाथ में लिया था एंड डिसाइडेड दैट एवरीवन शुड हेल्प इन द क्लीनिंग द विलेज। दो जो वाटर जो था, जो हिवरे बाजार का प्रॉब्लम था और जो क्लीनलीनेस था, है ना, जो कि कुंडलवाड़ी का था, तो इन्होंने क्या किया है, सबने इकट्ठा आकर और सबके एफर्ट से ही उन्होंने ये प्रॉब्लम्स जो है वो दूर किए। जैसे कि हम देख सकते हैं कि संत गाडगे बाबा जो थे, है ना, दे यूज्ड कीर्तन्स टू स्ट्रेट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस टू द पीपल। वो अपने कीर्तन के थ्रू जो है वो लोगों को क्लीनलीनेस का इम्पोर्टेंस बताते, और सिर्फ उनका कीर्तन के थ्रू ही वो नहीं बताते थे, है ना, दे गिव देम द एजुकेशन टू द सेल्फ रिलायंस एंड ही शोड पीपल हाउ टू क्लीन द विलेज थ्रू हिज ओन एक्शंस। खुद भी वो हाथ में झाड़ू लेकर लोगों को जो है वो गांव साफ करते हुए हमें दिखाई दिए गए हैं। उसके बाद राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस थ्रू हिज ग्राम गीता। जो हमारे राष्ट्र संत है, उन्होंने अपनी बुक ग्राम गीता में से भी क्लीनलीनेस का जो है उन्होंने इम्पोर्टेंस हमें बताया है। हमें अगर हमारी सोसाइटी अच्छे से अगर रखनी है, फॉर द पीसफुल सोसाइटी ऑल द नीड्स ऑफ ऑल सेक्शंस मस्ट मीट। मतलब जैसे कि लोगों के जो कॉमन नीड्स है, फूड है या फिर शेल्टर है या फिर क्लोथिंग है, ये तो, या फिर उसके साथ दे ऑल गेट द सिक्योरिटी, आल्सो एक्सप्लॉयटेशन इन द सोसाइटी मस्ट स्टॉप। हमारे सोसाइटी में जो कुछ एक्सप्लॉयटेशन होता है वो हमें स्टॉप करना होगा। एंड वी हैव टू क्रिएट अ पीसफुल एनवायरनमेंट इन आवर फैमिली। सबसे पहले हमारे फैमिली में हमें पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, फिर स्कूल में, और ऐसा करके हमारे कम्युनिटी में। और यही पीसफुल एनवायरनमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए, इन ऑर्डर टू स्प्रेड द पीस वर्ल्ड वाइड, वी सेलिब्रेट 21 सितंबर एज अ इंटरनेशनल पीस डे इन न्यूयॉर्क में जो है हम इंटरनेशनल पीस डे जो है वो 21 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। एंड उस दिन क्या किया जाता है कि सुबह 10 बजे जो है वहाँ पे एक बेल जो है वो बजाई जाती है, एंड दिस इज फॉलोड बाय अ मोमेंट्स ऑफ साइलेंस। दिस बेल हैज बीन मेड फ्रॉम द कॉइन्स गिवन बाय द पीपल फ्रॉम अराउंड 60 nations, so we can keep peace in our society, in your community, and by this we can keep the peaceful environment in our country also. Hello students, please like, share and subscribe my channel and press the bell icon to get the notification of new videos. Thank you.